السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے شے کی شروعات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم 20ویں سپارے کے ثلاثہ تک پہنچ چکے تھے۔ 20ویں سپارے کا آخری حصہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 21واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور نمایاں فرما دے گا جو سچے ہیں، اور جھوٹوں کو ضرور ظاہر کر دے گا۔ کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جو شخص جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے تگ و دو کرتا ہے۔ بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ان کی ساری خطائیں ان سے مٹا دیں گے، اور ہم یقیناً انہیں اس سے بہتر جزا عطا فرما دیں گے جو عمل وہ کرتے رہے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا، اور اگر وہ تجھ پر کوشش کریں کہ تو میری ساتھ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا، اور اگر وہ تجھ پر کوشش کرے کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کر۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ہم انہیں ضرور نیکوکاروں میں داخل فرما دیں گے۔ اور لوگوں میں ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے اور لوگوں میں ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مانند قرار دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے کوئی مدد آ پہنچتی ہے تو وہ یقیناً یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ کیا اللہ ان کو نہیں جانتا جو جہان والوں کے سینوں میں ہیں؟ اور اللہ ضرور ایسے لوگوں کو ممتاز فرما دے گا جو ایمان لائے ہیں، اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وہ یقیناً اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی بوجھ بھی اپنے اوپر لادے ہوں گے، اور ان سے روز قیامت ان کی ضرور پرسش کی جائے گی جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات بخشی، اور ہم نے اس کشتی اور واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں
जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम हकीकत को जानते हो। तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों की पूजा करते हो और महज झूठ गढ़ते हो। बेशक तुम अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा करते हो वो तुम्हारे लिए रिस्क के मालिक नहीं है। बस तुम अल्लाह की बारगाह में रिस्क तलब किया करो और उसी की इबादत किया करो और उसी का शुक्र बजा लाया करो, तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे। और अगर तुमने झुटलाया तो यकीनन तुमसे पहले कई उम्मतें झुटला चुकी हैं और रसूल पर वाज़ेह तरीक से अहकाम पहुंचा देने के सिवा नहीं है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह तख्लीक की इब्तिदा फरमाता है, फिर इसका इयादा फरमाता है, फिर इसका इयादा फरमाता है। बेशक ये काम अल्लाह पर आसान है। फरमा दीजिए तुम जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि उसने मखलूक की इब्तिदा कैसे फरमाई, फिर वो दूसरी जिंदगी को किस तरह उठाकर नशोनुमा देता है। बेशक अल्लाह हर शय पर बड़ी कुदरत रखने वाला है। वो जिसे चाहता है अजाब देता है और जिस पर चाहता है रहम फरमाता है, और उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। और ना तुम जमीन में आजिज करने वाले हो और ना आसमान में, और ना तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त है और ना मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और उसकी मुलाकात का इनकार किया वो लोग मेरी रहमत से मायूस हो गए और उन्हीं लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। सो कौम इब्राहिम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि वो कहने लगे तुम इसे कत्ल कर डालो या इसे जला दो। फिर अल्लाह ने उसे नमरूद की आग से निजात बख्शी। बेशक इस वाक़े में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाए हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बस तुमने तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को माबूद बना लिया है महज दुनियावी जिंदगी में आपस की दोस्ती की खातिर। फिर रोजे कयामत तुम में से हर एक दूसरे की दोस्ती का इनकार कर देगा और तुम में से हर एक दूसरे पर लानत भेजेगा और तुम में से हर एक दूसरे पर लानत भेजेगा, तो तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और तुम्हारे लिए कोई भी मददगार ना होगा। फिर लूत अलैहिस्सलाम उन पर यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उन्होंने कहा मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूं। बेशक वो गालिब है, हिकमत वाला है। और हमने उन्हें इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में नबूवत और किताब मुकर्रर फरमा दी और हमने उन्हें दुनिया में ही उनका सिला अता फरमा दिया और बेशक वो आखिरत में भी नेकोकारों में से हैं। और लूत अलैहिस्सलाम को याद करें जब उन्होंने अपनी कौम से कहा बेशक तुम बड़ी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो। अक़वाम आलम में से किसी एक कौम ने भी इस बेहयाई में तुमसे पहल नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और डाका जनी करते हो और अपनी मजलिस में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि कहने लगे तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ अगर तुम सच्चे हो। लूत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ रब तू फसाद अंगेजी करने वाली कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और जब हमारे भेजे हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम उस बस्ती के मकीनों को हलाक करने वाले हैं क्योंकि यहां के बाशिंदे जालिम हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस बस्ती में तो लूत अलैहिस्सलाम भी है। उन्होंने कहा हम उन लोगों को खूब जानते हैं जो इसमें रहते हैं। हम लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को सिवाय उनकी औरत के जरूर बचा लेंगे, वो पीछे रह जाने वालों में से है। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनके आने से रंजीदा हुए और उनके बाइस निढाल से हो गए और कहा आप ना खौफजदा हो और ना गमजदा हो। बेशक हम आपको और आपके घर वालों को बचाने वाले हैं सिवाय आपकी औरत के, वो पीछे रह जाने वालों में से है। बेशक हम इस बस्ती के बाशिंदों पर आसमान से आजाब नाजिल करने वाले हैं इस वजह से कि वो नाफरमानी किया करते थे। और बेशक हमने इस बस्ती से एक वाज़ेह निशानी के तौर पर अक्लमंद लोगों के लिए बरकरार रखा। और मदीन की तरफ
उनके कौमी भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, सो उन्होंने कहा, है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और यौम आखिरत की उम्मीद रखो और जमीन में फसाद अंगेजी ना करते फिरो। तो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटला डाला, बस उन्हें भी जलजले ने आ पकड़ा। सो उन्होंने सुबह इस हाल में की कि अपने घरों में औंधे मुंह पड़े थे। और आद और समूद को भी हमने हलाक किया, और बेशक उनके कुछ मकानात तुम्हारे लिए जाहिर हो चुके हैं, और शैतान ने उनके आमाल बद उनके लिए खुशनुमा बना दिए थे और उन्हें राह से फेर दिया था, हालांकि वो बीनादाना थे। और हमने कारून और फिरौन और हामान को, और बेशक मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए थे, तो उन्होंने मुल्क में गुरूर और सरकशी की और वो आगे बढ़ जाने वाले न थे। सो हमने हर एक को उसके गुनाह के बाइस पकड़ लिया, और उनमें से वो था जिस पर हमने पत्थर बरसाने वाली आंधी भेजी, और उनमें से वो था जिसे दहशतनाक आवाज ने आ पकड़ा, और इनमें से वो भी था जिसे हमने जमीन में धंसा दिया, और इनमें से वो भी था जिसे हमने गर्क कर दिया। और हरगिज ऐसा न था कि अल्लाह उन पर जुल्म करे, बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। ऐसे काफिर लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर औरों यानी बुतों को कारसाज बना लिया है, मकड़ी की दास्तान जैसी है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों से ज्यादा कमजोर मकड़ी का घर है। काश वो लोग जानते होते। बेशक अल्लाह उनको जानता है जिनकी भी वो उसके सिवा पूजा करते हैं, और वही गालिब है, हिकमत वाला है। और ये मिसालें हैं, हम उन्हें लोगों के समझने के लिए बयान करते हैं, और ये मिसालें हैं, हम इन्हें लोगों के समझने के लिए बयान करते हैं, और इन्हें अहले इल्म के सिवा कोई नहीं समझता। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को दुरुस्त तदबीर के साथ पैदा फरमाया है। बेशक इस तख्लीक में अहले ईमान के लिए निशानी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 20वां पारा था। पारा था, और अब हम इंशाअल्लाह 21वां पारा शुरू करेंगे। 21वां पारा के लिए दूसरा लाइव सेशन शुरू किया जाएगा। जज़ाकल्लाह। सी यू देयर।